Today we're going to focus on the aspect of worship or church worship or corporate worship. और आज हम जिस चीज के ऊपर समझने जा रहे हैं वो है जब हमारी आराधना सामूहिक आराधना के बारे में। And I called our sermon or our title a dangerous worship. और मैं इस आराधना को ऐसा कहता हूँ, एक खतरनाक आराधना। And you will come to know why I titled it a dangerous worship by the time we come to the end of our message. आप इसको समझ जाएंगे जब तक हम वचन के आखिरी में आ जाएंगे कि हम इसको खतरनाक आराधना क्यों कहते हैं। And we're going to look at Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 7. और हम सबोपदेशक की पुस्तक उसके 5वें अध्याय पहले पद से 7वें पद तक पढ़ेंगे। So today we're going to focus on the meaning and the purpose of temple worship or church worship. और इसलिए आज सुबह के समय हम ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के भवन में मंदिर की आराधना या परमेश्वर के घर की आराधना का अर्थ और उद्देश्य क्या है। One Sunday, the family just finished the church service, and the pastor took a little bit longer as well, and the electricity wasn't there, and there was a lot of problem. The AC wasn't working. But as the family was going back, the father was just complaining in the car as he was driving. The daddy was complaining. Man, oh man, it was a very tiring, long day in the church. और एक बार एक परिवार आराधना के बाद घर जा रहा था। आराधना बहुत लंबी हो गई थी। परमेश्वर के दास ने वचन का प्रचार बहुत लंबा कर दिया था और जब वो लोग आराधना से घर जा रहे थे तब Oh, that chairs in that church, it's so hard to sit on. और उन्होंने बोला जो कुर्सियां थी वो तो बड़ी सख्त थी बैठने के लिए। And the person who was sitting next to me, man, I don't know whether he took shower or not. और जो व्यक्ति मेरे साथ में बैठा था पता नहीं उस व्यक्ति ने नहाया था कि And नहीं। on. The dad was just whining in the car. और वो जो है पिता बार-बार कुड़कुड़ा रहा था, मुड़मुड़ा रहा था आराधना में। But one of the sons was sitting in the back seat. लेकिन एक पुत्र जो एक बेटा है वो पीछे बैठा था He गाड़ी said, में। Dad, उसने बोला पिता you only paid 10 rupees for it. It is not a bad deal. उन्होंने बोला कि आपने तो बस 10 रुपए दिए थे, कोई बुरी बात नहीं है। And tragically, that is the reality of many people and many और families. कई बार ऐसा होता है, कई परिवारों की वास्तविकता है, ऐसा होता है। They come to church for so many reasons. कई लोग कई प्रकार के कारणों के कारण आराधना में आते हैं। So for the son, it was not a bad deal because, for 2 hours he was able to listen to some good music and he got some, some inspiring thoughts. तो बेटे के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 घंटे बैठने थे आराधना में, गाना सुनना था, प्रेरणा पानी थी, वचन सुनना था। So for 10 rupees it was okay. बस 10 रुपए के लिए वो ठीक था उसके So I लिए। don't know how much money you put in the offering मुझे ये bag, नहीं पता कि आज सुबह आपने कितना ज्यादा but I दान hope डाला it है। is worth your time here. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आपका समय आज सुबह But के there समय are अच्छा some है। people in the church, they are here for more. लेकिन कुछ लोग कलीसिया में ऐसे हैं जो ज्यादा के लिए आते They are हैं। not here for the music. वो सिर्फ संगीत के लिए नहीं है यहाँ They पे। did not come here to see what kind of dress the other person is वो ये wearing. देखने के लिए नहीं आते दूसरे व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने हैं। They didn't come even to see the pastor. वो सिर्फ पासबान को देखने नहीं आए हैं। They came to see God. वो परमेश्वर को देखने आए They हैं। came to hear God. वो परमेश्वर को सुनने के लिए आए They हैं। came to have an encounter with वो God. परमेश्वर के साथ मुलाकात करने They आए want हैं। God to do something in their वो life. चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में कुछ कार्य करे। And so it is my prayer that you are in that category of people who came to see God. इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि आप उस स्तर के लोग हैं जो परमेश्वर को देखने आए हैं आज सुबह। And today, church attendance is dropping in many parts of the world. और आप देखेंगे आजकल कलीसियाओं में ज्यादा लोग कम पाए जाते हैं। But thank God that in our parts of the world that is not the case. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे जिस देश में हम रहते हैं उन क्षेत्रों में अभी ऐसा नहीं हुआ है। Today the fastest church growth is happening in India, in the world. आजकल जो सबसे ज्यादा गति में कलीसियाएं बढ़ रही हैं वो भारत में हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is doing his work in our part of the world, in Asia, in Nepal, in Bhutan, in Bangladesh, in China, in these countries where the gospel is hard pressed and there's greater persecution. There the church is thriving. और जहाँ पे ज्यादा सताव हो रहा है परमेश्वर हमारे क्षेत्रों में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। अगर आप लगा ले नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सारी जगहों में परमेश्वर कार्य कर रहा है। And so in Solomon's time, church attendance was not an issue. इसीलिए सुलेमान के समय में कलीसिया में उपस्थित होना एक परेशानी की बात नहीं थी। Because Solomon built one of the most magnificent church building that Jerusalem have ever seen. क्योंकि सुलेमान ने एक ऐसा भव्य इमारत या इसको बोलेंगे मंदिर बनाया
जो कभी और किसी ने उस समय में बनाया नहीं था। Can you imagine? It is almost, much more far greater significant for the people of God in Israel, or maybe as much as like the Gurdwara in Amritsar in Golden Temple. आप देख सकते हैं कि उस समय के लोगों के लिए वो कितना भव्य, कितना बड़ा, विशाल रहा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अमृतसर अगर हम जाते हैं तो गोल्डन टेम्पल है। Have you been to the Golden Temple in Amritsar? Have you seen the people, like they're thronged to enter the place? क्या आपने देखा है कि लोग कैसे वहां अंदर जाने के लिए होते हैं? And then there's a crowd, like thousands of people. हजारों में एक भीड़ है, तादाद है जो अंदर जा रही है। It was kind of that or even more for the Solomon's temple. ये उसी तरह से था या उससे ज्यादा रहा होगा सुलेमान के मंदिर का। Solomon could almost watch from the balcony of his palace the number of people that were rushing and was thronging into the temple. सुलेमान जो है अपने महल में अपने छज्जे से खड़े होकर ये देख पा रहा होगा कि कितने लोग अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे उस मंदिर से। And so Solomon wanted to narrate to us and give us some instructions about how to come to the church, how to come to the temple as this crowd is thronging into the places. तो इसीलिए जब सुलेमान देख रहा है कि एक बड़ी भीड़ उस मंदिर में आराधना के लिए आती है, तो सुलेमान निर्देश देना चाहता है कि हमको आराधना कैसे करनी है। Today also, even as more and more people are coming to the church, जब आज भी हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आराधना के लिए आ रहे हैं, we need to also be aware of what is required and how we need to prepare ourselves to go to the church. और हमको ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें, परखें, ये जानने के लिए कि हम कैसे आराधना में जाते हैं। So Solomon is talking about the approach to worship. तो इसलिए सुलेमान ये बताना चाह रहा है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए आराधना के प्रति। Because he saw that church attendance or people coming to the temple was becoming a routine for them. क्योंकि सुलेमान ये पता लगा रहा था कि लोगों का मंदिर में दिन प्रतिदिन आना एक दिनचर्या सा बन गया है उनका। That which was very sacred has become a kind of a usual routine. एक ऐसी चीज जो बड़ी पवित्र थी वो लोगों के लिए ऐसी बन गई थी जैसे सामान्य है प्रतिदिन आना। Now you go through the motion of going to church. अब आप ये सोचे कि ये लगातार चलने वाली चीज है कि आप आराधना में आते हैं। In other words, going to church or going to the temple became mechanical. अब आप ये सोचें इस चीज को कि मंदिर में जाना या परमेश्वर के घर में आना ये एक बनावटी सा हो गया है। In other words, it has lost its significance. कहने की बात यह है कि इसने अपनी जो प्रमुखता है वो खो दी है। So Solomon is talking about two negative approach to the temple that we must avoid. इसलिए सुलेमान जो है दो प्रकार की बातों को जो नकारात्मक है वो हमें बता रहा है जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। Number one, it is superficial sacrifice. सबसे पहली बात वो एक बनावटी, एक दिखावटी आराधना है। And secondly, careless speech. और दूसरी बात जो है अनजाने में बोली जाने वाली वो शब्द हैं। Let's read Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 3. आइए सबोपदेशक की पुस्तक उसके 5वें अध्याय पहले से लेकर 3 पद को And पढ़ते let's हैं। see what these two negative approach to worship means and what is it for us today. और देखते हैं ये दो नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है और आज ये हमारे लिए क्या मतलब रखते हैं। If we can read this in Hindi, please. इसको हम पढ़ेंगे पहले से लेकर 3 पद को। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसी ही बहुत सी बातों को बोलने से मूर्ख ठहरता है। So here in these 3 verses there are 2 positives and there are 2 negatives. तो इन 3 पदों में हम पाते हैं 2 सकारात्मक बातें हैं और 2 नकारात्मक। First of all, Solomon says, do not bring a superficial sacrifice to the temple. सबसे पहली बात जो सुलेमान यहाँ कह रहा है वो यह है कि अपनी आराधना को जो बनावटी है, दिखावटी है, उसको मत लाना। Solomon says to avoid offering the sacrifice of fools. और सुलेमान ये कहता है अपने बलिदान को जो मूर्ख समान है उसको मत लेकर आना। The sacrifice of fools और मूढ़ों का sacrifice बलिदान, the sacrifice of fools are evil in the sight of God. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खों के द्वारा किया गया बलिदान वो बलिदान नहीं है। What exactly is the sacrifice of a fool?
एक मूर्ख का बलिदान क्या है? I believe that is the kind of sacrifice that we read in Isaiah chapter 12 verses chapter 1 verses 12 to 17. और मूर्खों के अगर बलिदान के बारे में अगर हम देखें तो हम पाते हैं यशाया की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसका 12 और 17 से। Let's go to Isaiah chapter 1 यशाया उसका पहला अध्याय and verses 12 to 17. 12 से लेके 17 पद तक। It says, when you come to appear before me, who has asked this of you, this trampling of my courts, stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations, I cannot bear your worthless assemblies. Your new moon is feast, and your appointed festivals I hate with all my being. They have become a burden to me. I'm weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I hid my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Wash and make yourself clean. Take your evil deeds out of my sight and stop doing wrong. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. And then he says, come into my presence. Verse 18. तू जब अपने मुंह मुझको दिखाने के लिए आता है तब यह जान जाता है कि तू मेरे आंगन में पाँव को रौंदे। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है। महासभा ही से साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियम पर्वों को मानने से मैं बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उतका गया हूँ। जब तुम मेरे हाथ उठाते हो तब मैं तुमसे मुंह फेर लेता हूँ। तुम कितनी भी प्रार्थना करो ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरा है। अपने को धोकर पवित्र करो, अपनी आंखों के सामने से मेरे बुरे कार्यों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अन्यथा न न्याय चुकाना। विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप जाने लाल रंग से हो तो भी मैं हिम्स के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अग्नि रंग के हो तो भी वो श्वेत हो जाएंगे। 18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद। In English it says, now you come. आओ हम आपस में, having done these things. ये सब चीजों को करने के So बाद a person who is not living out the Christian life comes and offer all these praises or songs or whatever on Sunday morning. The Bible says this is a sacrifice of fool. इसलिए जो व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर के साथ नहीं बिताता है और रविवार में आकर ऐसे बलिदान और आराधना करता है, वो ऐसा है जैसे एक मूर्ख के द्वारा दिया गया बलिदान। In Solomon's time in the temple, सुलेमान के समय में मंदिर में an integral part of worship was the sacrifice of animals. आराधना का जो सबसे मुख्य एक बलिदान था वो था जानवरों का बलिदान चढ़ाना। And those animals that were sacrificed were cooked and they were eaten. और जो बलिदान जानवरों को चढ़ाया जाता था वो पकाया जाता था और फिर खाया जाता था। A major portion of the meat or good portions of the meat was given to the Levites, the priest. और जो सबसे ज्यादा जो उसका हिस्सा होता था उस बलिदान का, उस मीट का, वो जो है लेवियों को चढ़ाया जाता था। Now Solomon does not specifically say what exactly he meant by the sacrifice of a fool. तो यहाँ सुलेमान जो है बड़े स्पष्ट रूप में नहीं बता रहा है कि एक मूर्ख का बलिदान क्या होता है। But he does makes it clear that it is done out of ignorance. लेकिन वो ये बताना चाह रहा है स्पष्ट रूप में कि ये अज्ञानता में किया जाता है बलिदान। Because obviously the fool does not know what evil he is doing. क्योंकि उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि वो बलिदान चढ़ाकर क्या गलती कर रहा है, When you study the Bible, there is a lot of examples about sacrifices that are detested by God. जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो कई ऐसे बलिदान हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। Genesis chapter 4, the offering that Cain offered to God. उत्पत्ति 4 में अगर पढ़े तो वहां पर केन के द्वारा दिया गया बलिदान से परमेश्वर ने घृणा
करी। God did not accept the sacrifice of Cain, परमेश्वर ने केन के द्वारा दिया गया बलिदान को स्वीकार नहीं किया, not because of the particular offering he brought to God, इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ विशेष अपना बलिदान लेकर आया था, but because according to 1 John chapter 3 verse 12, लेकिन क्योंकि यूहन्ना के पहला यूहन्ना उसके पहले और तीसरे पद में, पहले यूहन्ना 3 और 12, 1 John chapter 3 verse 12, पहला यूहन्ना उसका 3 के 12 में, because of his bad deeds or evil deeds, the offerings of Cain was not accepted. क्योंकि केन के जो कार्य थे वो बुरे थे, इस कारण से उसका बलिदान स्वीकार नहीं किया गया। So what does God care as we come to the temple? तो परमेश्वर किस चीज की परवाह करता है जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं? God cares about our heart. परमेश्वर हमारे हृदय की चिंता करता He है। is looking on the inside. परमेश्वर हमारे अंदरूनी हिस्से को देख So रहा है। as we come to church, इसलिए जब हम कलीसिया में आते we हैं, need to prepare our heart before the Lord. हमको अपने हृदयों को परमेश्वर के सामने तैयार करना है। Is my heart right towards God? क्या मेरा हृदय परमेश्वर के सामने ठीक है? Is my heart right towards one another? क्या मेरा हृदय एक दूसरे के साथ ठीक है? And the Bible talks a lot about heart. और वचन जो है कई बार हमको कई बातें हृदय के बारे में बोलता It है। is the most wicked place of all. वो हर चीजों से सबसे धोखा देने वाली वस्तु The है। Bible says it is deceitful above everything else. वो हर चीजों के ऊपर धोखा देने वाली चीज है। So we need to take care of our heart. इसलिए हमको अपने हृदय की चिंता करनी है। So this is what I believe God is providing the instruction through Solomon here. इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर हमें सुलेमान के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है That the heart of Cain was angry and it was not right and God rejected his और sacrifice. केन का यहाँ पे वचन बता रहा है कि केन का हृदय क्रोधित था और अच्छा नहीं था, इसके कारण परमेश्वर ने उसका बलिदान स्वीकार नहीं किया। Look at Genesis chapter 4 verse 7. जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय के 7वें पद में आते हैं, If you do well, अगर आप अच्छा करेंगे, भला करेंगे, will not your countenance be lifted up? क्या आपका भेंट जो है वो देखा नहीं जाएगा? And if you do not do well, और अगर आप भला नहीं करते हैं तो sin is crouching at the door जो पाप है वो आपके द्वार पे खड़ा है and its desire is for you, और उसकी लालसा तुम्हारे लिए ये है, but you must master it. लेकिन तुमको उसके ऊपर प्रभुता करनी है। A similar example is found in 1 Samuel chapter 15, और पहले सैमुएल उसके 15वें अध्याय में भी हम वैसे ही एक प्रकार का उदाहरण पाते हैं, where God is speaking to King Saul. जहां पर राजा शमूएल से परमेश्वर साउल से बात कर रहा है। 1 Samuel chapter 15 verse पहला 22. सैमुएल उसका 15वां अध्याय उसका 22वां पद, God is saying to Samuel, it is better to obey than to bring वहां sacrifice. परमेश्वर जो है सैमुएल से कह रहा है ये तेरे लिए अच्छा है कि तू अपने मन को लेकर आए, इसके द्वारा अपने बलिदान को। To obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है और होम बलि और मेम बलि से मैं प्रसन्न नहीं होता। We see God again repeatedly when Saul did not sacrifice but not to please God. He did not get to the people to follow him. और जब शाऊल ने जो है एक अच्छा उत्तम बलिदान नहीं चढ़ाया जिसके द्वारा वो लोगों की अगुवाई करता, तब ऐसा उसको सुनने को मिला। In the New Testament, in the book of Hebrews, जब हम नए नियम में आते हैं और इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, we see a considerable amount of time, the book of Hebrews instructing the believing Jews to whom the letter was written to not to rely on the sacrifices. और हम पाते हैं कि यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में जब आते हैं तो परमेश्वर बार बार यहूदी लोगों को यह स्मरण दिला रहा है कि मैं तुम्हारे बलिदानों की तरफ ध्यान नहीं देता, But to look for ways to please God. लेकिन उन तरीकों से जिससे तुम परमेश्वर को प्रसन्न करो। Because in the day of judgment, sin will be judged by a God who looks at our actions and our hearts. क्योंकि न्याय के दिन में परमेश्वर हमारे कार्यों को देखकर हमारे कार्यों के आधार पर हमारा न्याय करेगा। Religious devotion is a meaningless vanity without communion with God. इसलिए धार्मिकता का कार्य जो होता है, जो एक रीति रिवाज जैसा है, वो चीज व्यर्थ है अगर हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध नहीं So है। whatever we are doing, but the songs, the offerings, the lifting of our hands, the praise, the clothes we wear, everything has to be in relation to our relationship with God. इसलिए हम जो कुछ भी यहाँ करते हैं, आराधना का गाना गाना, तैयार होकर आना, हाथों का उठाना, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना, जो भी हम यहाँ करते हैं
वो उससे संबंधित होना चाहिए जो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है। Secondly, Solomon says दूसरी बात जो सुलेमान कहता है that there was careless speech in the temple. कि मंदिर के अंदर, आराधनालय के अंदर लोग जो कुछ बातें बोल रहे थे वो ऐसे ही बोल रहे थे, बेकार थे। Meaningless prayers were offered in the temple. व्यर्थ की प्रार्थनाएं जो है वो मंदिर में की जा रही थी। Filling prayers with empty words. खाली शब्दों के द्वारा प्रार्थनाएं भरी जा रही थी। Flowery speech meant to impress other people. फूलों जैसी अच्छी अच्छी बातों के द्वारा जो है मंदिर में लोगों को सुनाई दे रहा था शब्द। Have you ever been to places where people do prayers like that? जब कभी आप ऐसी जगह में गए हैं जहाँ लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं? What do you do when you are with that kind of a person who always pray to impress? अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए प्रार्थना करता है तो क्या करेंगे आप? Yeah, sometimes we ourselves don't feel like praying when we are in their midst. जब हम उनके बीच में होते हैं तो हमको खुद भी नहीं लगता कि हम प्रार्थना करें। Jesus said about such kind of prayers. यीशु ने ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में कहा है। Yeah, the two guys who went up to the temple to pray. दो व्यक्ति जो प्रार्थना के लिए भवन में गए, One of them was impressing himself through his eloquent words. और एक व्यक्ति जो है अपने अच्छे अच्छे शब्दों से अपने आप को खुश कर रहा था। My dear friends, God is not interested in the eloquence of our speech when we pray. मेरे प्रिय मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे अच्छे अच्छे शब्दों से, गुणी शब्दों से प्रसन्न नहीं होता। I have seen and know many people when we have group prayers, they don't want to pray because they feel shy. I don't know how to pray. मैंने देखा है कि हमारी सामूहिक प्रार्थना में जब हम मिलते हैं तो कई लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते, ये सोचकर कि पता नहीं मैं कैसे प्रार्थना करूं सबके बीच। Let me tell you, my friends, prayer is just like you talking to your friends. मित्रों, प्रार्थना बस ये चीज है जैसे हम लोग अपने मित्र से बात कर रहे हैं। Prayer is just like you talking to your dad or your mom. ये ऐसा है कि जैसे हम अपने पिता या अपनी माँ से बात कर रहे You हैं। just talk to God. आप परमेश्वर से बात करते You हैं। don't need to put on a show. आपको एक कुछ चीज दिखावटी दिखाना नहीं You don't है। need to learn nothing. आपको उसके लिए कुछ सीखना नहीं है। And say to God, और परमेश्वर से कहना है, God, I'm just starting my car today. परमेश्वर मैं अपनी आज गाड़ी शुरू कर रहा I हूँ। know it's flooding on the road. मुझे पता है सड़क पे बहुत बाढ़ आ गई है। Please help me to get to church. परमेश्वर मेरी सहायता करे, मैं कलीसिया तक पहुंच जाऊं। Amen. Amen. आमीन। God hears that. परमेश्वर सुनता है ऐसा। You don't need to come to God and say, Gracious Heavenly Father, आपको परमेश्वर के पास आकर ये बोलने की जरूरत नहीं। we thank you and we praise thee for this beautiful morning. You know, we don't need to use all these vocabularies we memorized. हमको उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है जो हमारी याददाश्त में है। I still remember I went to Bible school. मुझे अभी भी याद है मैं बाइबल स्कूल में गया। You know, in my teenage years, I was a naughty bad boy. मैं अपने जवानी में जब था मैं बहुत ही बदमाश किस्म का था। It's only after I got saved and I went to Bible school, my life changed. जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, तब जाकर प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। So growing up in the church, I never prayed sincere prayers. और कलीसिया में जाने के वक्त मैं बिल्कुल गंभीरता से प्रार्थना नहीं करता था। I prayed so that I won't get beaten up at home. बस मैं इसलिए प्रार्थना करता था कि मैं घर जाके मेरी पिटाई ना हो। It never came from my heart. मेरे दिल से कभी प्रार्थना नहीं So to आती। be honest with you, I didn't know how to pray. लेकिन सच्ची में अगर आपको बताऊं, मुझे पता ही नहीं था But प्रार्थना after कैसे being करना in है। Bible school for a year, लेकिन बाइबल स्कूल में एक साल रहकर I saw all these faculty members pray and I saw these people who know how to pray. Then I thought I have to pray like them. और फिर मैंने देखा ये विद्यार्थी जो अध्यापक लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं और जो वहां पे और छात्र लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा मुझे भी इनके समान प्रार्थना करनी During है। the holidays, first year of my holidays, I went back to my town. और जब उस पहले साल की पहली छुट्टी में जब मैं अपने घर गया, Now everybody is suspecting me suddenly to be a pastor. और सब लोग एकदम से सोच रहे हैं कि बाइबल स्कूल से लौट के अब मैं एक पास्टर हूँ। So when I went to a home for dinner, तो जब मैं किसी के घर में खाने के लिए there's a lot गया, of people there. वहां पे बहुत से लोग They थे। asked me to pray. उन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए बोला And I didn't know what to pray. और मुझे प्रार्थना ही नहीं पता था कैसे So I करनी है। started blessing the grandfather, the grandmother. और तो फिर मैंने दादा वहां पे और I उनकी दादी started, को आशीष देनी I शुरू कर started दी। praying for the weather. और मैंने अच्छे मौसम के लिए And the प्रार्थना food करनी is शुरू going कर दी। cold. और खाना ठंडा होता जा And रहा है everybody is looking at each और other. सब लोग एक दूसरे को देख रहे And हैं I'm not, my eyes tight and I'm still praying और away. मैंने अपनी आंखें कस के बंद की हुई और मैं फिर भी How many प्रार्थना of you कर रहा been हूँ। there? आप में से कितने लोग ऐसे से गुजरे हैं? So that's the journey we come in learning to communicate with God. ये एक यात्रा है जो हम सीखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को रखते हैं। But my friends, लेकिन मेरे मित्रों, there are times when we come to the awesome, mighty presence of God. जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य उस अद्भुत उपस्थिति में आते हैं, We just don't need to say nothing. हमको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, We just need to listen. हमको सुनना है। Amen? Amen. Amen?
We need to give God the space and the room to speak to us. हमको परमेश्वर को वो जगह देनी है और परमेश्वर को अनुमति देनी है कि वो हमसे बात करे। Imagine you met somebody that you really admire. ऐसा सोचें कि आप किसी के पास मिलने के लिए गए जिसको आप बहुत ही ध्यान देते हैं, जिसकी तरफ आप उससे मिलते हैं। Can you think of a person? क्या आप सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे Maybe में? because of his intellectual capacity or maybe because of something about that person. शायद वो व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी है या कुछ है उस And व्यक्ति you के got बारे an में बात। opportunity to be one-on-one with that person. और आपको ये अवसर मिला है कि आप उस व्यक्ति के साथ एकाएक करके बैठे हैं And you just blah 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 blah. और आप बस शुरू हो गए और बोलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं और बोलते जा रहे And हैं। this person that you admire is not even getting a chance to say nothing. और जो व्यक्ति आपको ध्यान से देखने के लिए वहां बैठा है, आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि कुछ बोले। How would you feel? आपको कैसा लगेगा? Would you do that? क्या आप ऐसा करेंगे? What would you do? आप क्या करेंगे? If you come to the person that you really admire the most, अगर आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको आप बहुत ध्यान, जिसके प्रति आप चिंता करते हैं, you will provoke him or her with a question that will draw out lot of stuff that you can listen. आप ऐसा कर उस प्रश्न को निकालते हैं बाहर कि ऐसा क्या चीज है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। You know, I really admire how you do this. Can you just tell me what makes you do this? आपको मतलब मैं आपको सच में बहुत ध्यान से देखता हूं, आप बता सकते हैं आप ये वाला कार्य कैसे करते हैं? Then who does the most of the talking? तो फिर कौन कर रहा है सबसे ज्यादा बातें? The person that you admire. वो व्यक्ति कर रहा है जिसको आप देख रहे हैं। And you are just listening. You are just soaking in. और आप बस ले रहे हैं, अपने अंदर उस चीज को ले रहे हैं। Amen. Somehow, those of us who are Pentecostal, हम में से जो लोग ज्यादा पेंतिकुस्ती हैं, we like to just tell God everything. हम परमेश्वर को सब बातें बताना चाहते हैं। We like to remind God the Bible. हम परमेश्वर को बाइबल याद दिलाना चाहते हैं। And we need to tell God how it is done. और हम परमेश्वर को बताते हैं कि ये कार्य कैसे होना है। And we don't give God the time to speak. और हम परमेश्वर को समय नहीं देते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे। The Bible says, be still and know that I am God. वचन कहता है शांत हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। So it is easy for us to come to the church and just talking out and saying stuff and go away without hearing anything. ये बहुत आसानी से ऐसा हो सकता है कि हम कलीसिया में आकर बोलते जाएं और फिर कलीसिया से चले जाएं बिना परमेश्वर से कुछ सुने। Solomon's thought here as you study this word is very simple. तो सुलेमान का जो विचार है यहाँ पर वो बहुत सरल है। God is bigger. परमेश्वर बड़ा है। God is smarter. परमेश्वर जो है वो बहुत ही तीव्र है। God is wiser. परमेश्वर बुद्धिजीवी है। He is more awesome than all of us put together. परमेश्वर सबसे अमूल्य है और सब लोगों से जो सब चीजें रखी गई हैं। So Solomon is saying, इसलिए सुलेमान ये कहता है, you will just do better to just shut up and listen to God. तुम ज्यादा अच्छा तब करोगे अगर तुम चुपचाप रहो और परमेश्वर को बोलने दो। I believe we should memorize this Bible verse. मैं ये सोचता हूँ कि हमको इन पदों को कंठस्थ कर लेना चाहिए है। These Bible verses must be memorized. ये वचन हमको याद कर लेना चाहिए है। Because in our nature we don't do this. क्योंकि हमारे स्वभाव में हम ऐसा नहीं करते हैं। Ecclesiastes chapter 5 verse 2. सभोपदेशक उसका 5:2। Memorize this. इसको याद कर लें। God is in heaven. Everybody say it with me. God is in heaven. परमेश्वर स्वर्ग में है And you are on earth. और हम पृथ्वी पर। So let your words be few. इसलिए तुम्हारे वचन थोड़े हों। Wow. Remind ourselves every now and then, God is in heaven. हर समय अपने आप को कभी ना कभी ये याद दिलाते I रहे am on परमेश्वर earth. स्वर्ग में है, I मैं am- पृथ्वी पे हूँ And let my words be few. और मेरे वचन मुंह के वो थोड़े हों। So this is a statement of perspective. तो ये एक ऐसा कथन है जो दृष्टिकोण का है। It is not about God is so far away. ये ऐसा बताने के लिए नहीं है कि परमेश्वर बहुत दूर है। It is the perspective of how great, how big, how mighty God is. ये हमारा दृष्टिकोण है उस तरह से देखने के लिए कि परमेश्वर कितना महान है, वो कितना अद्भुत है। God is in the realm of infinite. परमेश्वर उस क्षेत्र में है जो असीमित है And we are finite. और हम जो है सीमित है। He hears the inaudible वो सुनता है जो बोला नहीं जाता and he sees the invincible. और वो देखता है जो दिखाई नहीं देता। Sometimes we don't have to
sit there and pray for 30 minutes with words spoken out. कई बार हमको 30 मिनट बैठकर बस शब्दों को बोलकर प्रार्थना नहीं When करनी। you are in communion with God, जब आप परमेश्वर के साथ एक मेल में हो, some of the most powerful prayers that I prayed had no words. कई बार जो बहुत ही एक सामर्थी प्रार्थनाएं मैंने करी, उनके कोई शब्द ही नहीं थे। Sometimes it's just a groaning of our heart. बस वो दिल का करहाना था। How many of you have groaned in the presence of the Lord? आप में से कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में No, करहाए हैं? no words. शब्द नहीं है, Those are the powerful prayers. वो बहुत ही सामर्थी प्रार्थनाएं हैं। When I prayed those prayers, और जब मैंने उन प्रार्थनाओं को किया I है, have seen God move. मैंने देखा है कि परमेश्वर ने कार्य किया है। I've seen God answer. मैंने देखा है कि परमेश्वर ने उत्तर दिया I है। didn't even have to say a single word. मुझको एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। So come to God इसलिए परमेश्वर के पास आए, with your heart. अपने हृदय के साथ Pour out, pour out उसको उंडेलें परमेश्वर के that which सामने, is in your heart. जो आपके दिल में है। Amen. आमेन। God penetrate that which is inaudible to human ears. जो मनुष्य के कान में सुनाई नहीं देता, परमेश्वर वहां तक पहुंच जाता है। God pierce into what is invisible to human और eyes. जो मनुष्य की आंखों के लिए दिखाई नहीं देता, परमेश्वर वहां तक भी देख लेता है। Can you just जाता है। imagine that? क्या आप सोच सकते हैं ऐसी बात? The power of our God. परमेश्वर की हमारी सामर्थ के बारे में। Recently I was in Maldives मैं अभी कुछ समय पहले मालदीव्स में था, and somehow in my checked in baggage there was something that the investigators thought was suspicious. और मेरे बैग में उन्होंने ऐसा कुछ पाया कि कुछ ऐसी चीज है, उन जांच पड़ताल करने वाले लोगों ने, कि कुछ है, कुछ गलत है। And so in the Kochi International Airport, for the very first time in my life, I go to the back of the house where they scan all the boxes. और मेरे लिए कोची जो है हवाई अड्डे पे मुझको एक ऐसी जगह में ले जाया गया जहां पर उन्होंने बड़े बड़े बक्सों को रखा हुआ है, जहां जांच पड़ताल की जाती I है। had to walk about 15 minutes through these equipments and machines to this final place where they brought my bag out. और 15 मिनट के लिए मुझे उन सारी मशीनों से होकर गुजरना पड़ा जहां पर उन्होंने मुझे मेरा बैग लाके दिया। But the technology that they are using to scan our bags on the back side of the airport, it is mind blowing. लेकिन जो तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बैगों को देखने के लिए, उसके अंदर क्या है, वो बहुत ही भव्य है। And I thought to myself, और मैंने अपने दिमाग में ऐसा सोचा, if this is what man has to do to check a battery in a box, अगर एक व्यक्ति को एक बैग देखने के लिए इतना कुछ है करने के लिए, how about God in heaven? परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसके पास कितना है। Think of his great scanning capacity. उसकी जो देखने की क्षमता है उसके बारे में सोचें। The whole world, पूरी दुनिया, he sees. वो पूरी दुनिया को And देखता there है, is nothing hidden from him. और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे छिपा हुआ है। What a great and mighty God we serve. कितना सामर्थी और अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। Hallelujah. He is not sitting in some cage. वो एक कोई अंदर कोई जाल में बैठा नहीं है। He doesn't need anybody coming and lighting a light. वो ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने हमें धूप जलानी He है। doesn't need to be woken up. वो उसको किसी को बजाकर उसे उठाने की He is जरूरत नहीं है। awake. He is awake 24/7. वो 24 घंटे जगा हुआ है। He's scanning every heart, every mind, every life, even when we sleep. वो हर हृदयों को, हर जीवनों को, हर दिमाग को देख रहा है जब हम सो भी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And so when you come to the presence of God इसलिए जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, with your struggles, अपने संघर्षों को, with your pain, अपने दर्दों के with your साथ, sickness, अपनी बीमारियों के with साथ, your rejection, अपने तिरस्कार के with your साथ, sins, अपने पापों के with your साथ, brokenness, अपने टूटेपन के with every साथ, hurts you have, अपने हर चोटों के and साथ, you come to this place called church. और जब आप कलीसिया में आते हैं, Friends, you are in the presence of this mighty God. आप परमेश्वर की महान उपस्थिति में हैं। He sees it. वो सब देखता है, He knows it. वो जानता है, He knows where you need healing. वो जानता है आपको किस क्षेत्र में चंगाई He चाहिए knows है, where you need forgiveness. वो जानता है आपको किस क्षेत्र में क्षमा चाहिए है। And we just need to come stand naked before Him. बस हमको परमेश्वर के सामने नग्न खड़ा हो जाना है। Hallelujah. Amen. The word of God, the Bible says, is like a two-edged sword. परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार के समान What है। does it do? क्या करता है वो? It cuts. वो काटता है। If you're a doctor or if you work in the operation theater, you know exactly what a two-edged sword does. आपको पता है, अगर आप एक वैद्य हैं, आपको पता है कैसे अस्पताल में उसका कार्य होता है। Wherever it goes, it cuts on both sides. और जहां
जहां कहीं भी वो लगता है वो दोनों तरफ से The काटता Greek है। meaning of the word that is implied there is to bear open, slit open. जो शब्द यहाँ पर इसका अनुवाद हुआ है वो ये है कि जब ये काटता है तो वो खोल देता है दोनों तरफ से। In the temple, when the sacrifices were made, जब मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था, the Levites, the priests, will slit the throat of the goat. जो लेवी लोग होते थे वो बकरों का गला काट देते थे, And the throat of the animal is slit open. और वो जो जानवर का जो गला है वो बिल्कुल खुल गया है अब, And they just laid there. और बस वो उसको वहीं छोड़ देते थे। That is the meaning of the word two-edged sword that penetrates. और यहाँ पर इसी चीज का यहाँ अर्थ है दो धारी तलवार जो छांटती है। We allow the word of God to cut open and bear before God as a sacrifice. हम परमेश्वर को अनुमति देती हैं कि परमेश्वर का वचन हमें काटे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुल जाएं उस बलिदान के समान। Are you hearing the word of God today? क्या परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? We allow the word of God to make a sacrifice of our life where we bear open before God and say, God, I surrender before your mighty, awesome presence everything that I am before the word of हम God. परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं कि परमेश्वर तू हमें काट, और हम परमेश्वर के सामने एक बलिदान के रूप में खुल जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर यहाँ मैं हूँ, मैं ऐसा ही बलिदान हूँ। You can experience the miracle of God, आप परमेश्वर के चमत्कारों को अनुभव कर सकते healing हैं, from God. चंगाई को परमेश्वर से पा सकते You हैं। don't need anybody to come and lay hands. आपको किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई आपके ऊपर हाथ रखे I आकर। believe when worship goes on, healings can take मुझे place. विश्वास है ये कि जब आराधना यहाँ होती है तो आप चंगाई को अनुभव कर सकते हैं, Doors opens up. द्वार खुल जाते हैं, Provisions comes your way परमेश्वर अपने चीज हमारी पूर्ति करता है जरूरतों की। as you bear open before the Lord. जब आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल बेपरद होकर खुल जाते हैं। And so Solomon is saying, इसलिए सुलेमान कहता है, please don't come before the presence of God and fill the place with garbage of careless speech. और कृपया कर कर आप आराधना में आकर कूड़े के समान अपने मुंह से निकले हुए उन बेकार के शब्दों को ना बोलें। So from that, Solomon goes on to talk about the approach to worship. और यहाँ पर सुलेमान जो एक बार फिर से हमें बता रहा है कि आराधना के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा This होना चाहिए। approach that are not negative but positive. और ये जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। When you come to the temple, Solomon says, guard your steps. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब तुम आराधना में आते हो, परमेश्वर के घर में आते हो, अपने कदमों का ध्यान रखो। Ecclesiastes chapter 5 verse 1. सबोपदेशक उसका 5 का पहला पद। One rendering of this verse or another translation of this verse says, watch your feet when you go to the house of और God. यहाँ दूसरा अनुवाद इसका ऐसा कहता है कि अपने कदमों का सावधानी से चलो कि तुम कैसे परमेश्वर के भवन में आते हो। What does that mean? इसका क्या मतलब है? What did Solomon mean by saying, watch your step when you go to church? सुलेमान क्या कहना चाह रहा है जब वो यहाँ पर ये कह रहा है सावधानी से चलो जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो? In the Bible, the metaphor of feet or walking is daily life with God. यहाँ पर जो रूपक जो इस्तेमाल हुआ है प्रतिदिन, यहाँ पर इस शब्द का वो ये है प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना। It's a real fitting analogy, isn't it? ये एक सत्य वाली, एक असली अच्छी Because वाली when your feet रूपक है। moves, क्योंकि जब हमारे कदम चलते हैं does your body stay back? क्या हमारा शरीर पीछे छूट जाता है? Okay, feet, you go. I'm not coming. ठीक है, पैर तू चले जा, मैं तो नहीं आ Does रहा। anybody do that? कभी ऐसा होता है? If your feet decide to go, अगर हमारे कदमों ने निर्णय लिया है कि जाना है, this body is going with it. ये शरीर भी उन पाँवों के साथ जा रहा है। So what Solomon is saying, तो सुलेमान जो कह रहा है, be careful when you come to church where you have been throughout the week. सावधान रहो कि तुम कलीसिया में किन कदमों के साथ जाते हो जैसे तुम पूरे हफ्ते रहे। Yeah, have you been to places? क्या तुम जगहों में गए हो? Have you walked places that you should not have walked? क्या तुम उन जगहों में चले हो जहां तुम्हें नहीं चलना चाहिए था? I remember a few years ago, when on a weekly near our Burrell church, one of our church member happened I happened to see him coming out of a liquor shop. कुछ सालों पहले मैंने अपने कलीसिया के एक जन को देखा जब हमारी जहां पुरानी कलीसिया थी कि वो एक शराब खाने से बाहर आ रहा था। This guy wanted to dig a hole and go underneath. और वो पूरा गड्ढा करके अंदर घुसना
गुस्सा चाहता था And I acted like I saw nothing. और मैंने ऐसा दिखाया कि मैंने देखा ही नहीं. But you see, you think if I saw and I can act like I didn't, but do you think God sees and He doesn't, He act like He didn't see it? आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि मैंने देखा नहीं तो क्या परमेश्वर भी ऐसा करता है कि वो ऐसा दिखाएगा कि उसने देखा नहीं? You see, Jesus talks about this परमेश्वर ऐसे यीशु ऐसे बात करता on है the Sermon on the Mount. उस पहाड़ी उपदेश में. He talks about the narrow road and the narrow gate that lead to life and the broad road that takes to death or destruction. और यीशु वहां बताता है उस सकरे मार्ग द्वार के बारे में जो स्वर्ग ले जाता है और उस चौड़े द्वार के बारे में जो नरक और निराश की नष्ट की ओर लेके जाता So है. the point that we have to observe from what Solomon is तो saying यहाँ बिंदु से हम क्या सीख सकते हैं जो सुलेमान बता रहा है is to take where you take your foot, कि वहां लेकर जाओ अपने आप को जहां तुम्हारे पैर ले जाते हैं. because it is out of the condition of our heart, our foot, our leg moves. क्योंकि जिस प्रकार से हमारे हृदय है उसी हिसाब से हमारा पैर चलते हैं. Solomon's call for guarding your steps whenever you approach God is a real plea for you to consider the condition of your heart. तो सुलेमान हमको उस चीज के लिए बुला रहा है कि हम लोग सावधान हो जाएं अपने कदमों के बारे में कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उसकी दया को मांगते हैं. Where have your feet been lately? अभी हाल फिलहाल में आपके कदम किधर गए थे? What does that say about your walk with God? वो कदम आपके परमेश्वर के साथ चाल के बारे में क्या बताता है? And the condition of your heart. और आपकी दिल की स्थिति के बारे में क्या बताता है? So before you approach God, इसलिए इससे पहले आप परमेश्वर के पास you जाएं. need to assess and evaluate, हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों को जांचें और परखें. because God watches every steps we have taken. क्योंकि परमेश्वर हमारे हर कदमों को जांचता है. In the new covenant, नए वाचा में Hebrews chapter 4 verse 16, जब हम इब्रानियों की पत्री उसके चौथे पद में आते हैं, Hebrews chapter 4 verse 16, उसका 4 अध्याय और उसका 16वां पद, it tells us that we are to boldly approach God's यहाँ throne. पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें हियाव से आना है. Does that contradict with what Ecclesiastes says? क्या यहाँ पर एक विरोधाभास है इस बात में जो हमको सबोपदेशक की पुस्तक में सुनने को मिल रहा है? Ecclesiastes, Solomon says, guard your steps. सुलेमान तो कहता है कि अपने कदमों को सावधानी से रखो, Be careful. सावधान रहो. Here in Hebrews, और यहाँ पर इब्रानियों में it says, boldly come. और यहाँ पर लिखा है हियाव के साथ तू परमेश्वर के पास जा. You can come boldly हम परमेश्वर के पास हियाव से जा सकते if your हैं heart is right. अगर हमारा हृदय ठीक है. Amen. Amen. The God that we serve today is the same God that Solomon served. जिस परमेश्वर की आज हम आराधना करते हैं वो वही परमेश्वर है जिसकी सेवा सुलेमान कर रहा था. Our God is not a bipolar God. हमारा परमेश्वर जो है उसके दो राह नहीं है. Our God does not have mood swings. उसके पास उसके जो मन है वो बदलते नहीं He रहते. is always the same. वो हमेशा सामान्य है. Amen. Amen. And therefore, whether you watch your steps or guarding your steps or coming boldly, it has to do with our heart. इसलिए चाहे हम अपने कदमों को सावधानी से रखें या उसके सिंहासन के पास हियाव से आए, ये बहुत जरूरी है कि अपने हृदयों को जांच लें. There is only one difference between Solomon's temple and our temple. आज सिर्फ दो भिन्नता है सुलेमान के मंदिर में और हमारे मंदिर में. In Solomon's temple, सुलेमान के आराधनालय में there was blood sacrifice of goats and animals. वहां पे जानवरों का और बकरों का बलिदान चढ़ाया जाता था. Today you don't see that here. लेकिन आज हमारे आराधनालय में आप ये नहीं देखते Why हैं. don't you see that? आप क्यों नहीं देखते हैं वो चीज Why यहाँ? don't we have sacrifices here? हमारे सामने बलिदान क्यों नहीं हो रहा है? Because of Jesus. क्योंकि यीशु के कारण, Because of what he has done on the cross. क्योंकि यीशु ने जो उस क्रूस पर हमारे लिए किया है. Wow. कितना अद्भुत है ये. Think of that. सोचिए इसके बारे में. We come here हम यहाँ आते हैं and we can boldly come और हम हियाव के साथ आ सकते हैं because of the sacrifice that Jesus made on the cross for us. क्योंकि जो बलिदान यीशु ने उस क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाया है. Friends, if that's the case, अगर मित्रों वो तरीका है तो, if Jesus sacrificed his blood is real, अगर यीशु ने अपना बलिदान चढ़ाया है जो वास्तविक है, सच है, friends, in the altar of God's presence परमेश्वर की उपस्थिति के सिंहासन पे, is not the blood of goats and animals. वो कोई जानवरों का या भेड़ों का बलिदान नहीं है. It is the blood of Jesus. वो यीशु का लहू है.
How many of you believe that the blood of Jesus is still alive? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु का लहू आज भी जीवित है? आमीन। I firmly believe, I always visualize this in my mind. There is no biblical words to support this. मैं हमेशा अपने दिमाग में इस चीज का विचार करता हूँ। When Jesus ascended to the Father, जब यीशु उठा लिया गया अपने पिता के it's पास, almost as though he carried a cup. वो ऐसा था कि जैसे उसने वो प्याला उठा लिया था। And the cup was full of the blood. और वो प्याला पूरा लहू से भरा हुआ था। And he presented it before the throne of और grace. उसने उस अनुग्रह के सिंहासन के पास अपने पिता को दिया। And before the presence of God, और जब परमेश्वर की उपस्थिति के पास this blood was shed on the cross. जो ये लहू था जो क्रूस पर बहाया Is गया still था, alive. अभी भी वो जीवित है। We sing that old song. हम वो पुराना गीत गाते हैं। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. सामर्थ है, अद्भुत सामर्थ है यीशु के लहू में। This blood is still washing our sins. वो लहू आज भी हमारे पापों को धो रहा This है। blood is still forgiving our sins. वो लहू आज भी हमारे पापों को क्षमा कर रहा है। This blood is still saving people. ये लहू आज भी लोगों को बचा रहा है। It has to be alive. उसको जीवित रहना ही पड़ेगा। Hallelujah. So can we come here lightly? तो क्या हम बड़े साधारण तौर पर आ सकते हैं यहाँ पर? Can we just then choose to say, no, it's raining, I can't come today? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ठीक है आज बारिश हो रही है तो मैं आज नहीं आ सकता, Or I don't want to go today because it's too hot. और मैं इसलिए आज जाना नहीं चाहता आराधना में क्योंकि बहुत गर्मी हो Or रही है। let's cancel out the church because the atmosphere is not good. ठीक है आज वातावरण थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, चलो आराधना में जा रहा कैंसिल कर Friends, दो। as long as the blood is alive, we will come into the presence of God. मित्रों जब तक परमेश्वर का लहू जीवित है हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। Hallelujah. Nothing will stop us. कोई भी चीज हमें रोकेगी नहीं, Nothing will separate us. कोई भी चीज हमें अलग नहीं करेगी। No sickness, कोई नहीं बीमारी, no persecution, ना सताव, not even death मृत्यु भी नहीं कर can सकती। take us away from the presence of हमको God. परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकती। Hallelujah. Amen. So we come to God इस- with care, with reverence, with respect. इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आदर के साथ, इज्जत के साथ, ध्यान से आते हैं। I want to encourage you to come to worship of God prepared. मैं आप सबों को उत्साहित करता हूं परमेश्वर के लिए आराधना में तैयारी के साथ आएं। Hallelujah. Don't just come to church without preparation. बस ऐसी ही आराधना में बिना तैयारी के ना आएं। Pray before you come. प्रार्थना करें इससे पहले आप यहाँ आते How हैं। many of you pray before you leave your home? इससे पहले कि आप यहाँ आते हैं आप अपने घर से प्रार्थना करके कौन कौन आता है? Pray before you leave. प्रार्थना करके आए, छोड़ें। Again, different people pray differently. अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से I प्रार्थना don't करते care हैं। how you do it, मुझे चिंता नहीं है कि आप कैसे करते हैं, but do it. लेकिन उसको करें। Don't come to church without praying before कली- you left the house. कलीसिया में बिना अपना घर छोड़े बिना प्रार्थना के ना Now, आएं। once you enter here, और जब आप यहाँ प्रवेश कर जाते हैं what do you do? आप क्या करते हैं? One of the first thing सबसे पहली चीज as a pastor, एक पासवान होके I'm worried about the electricity. मैं चिंता कर रहा हूँ बिजली के बारे I'm में, worried about the technical things. मैं जो तकनीकी चीजें उसकी चिंता कर रहा हूँ, And the devil want to distract me. और शैतान मुझे जो है भटकाना चाह रहा है। Instead of praying, मैं प्रार्थना करूँ इसके oh, बजाय, is the electricity on today? क्या बिजली आ रही है? And then I'm running after the lineman. और तब मैं जा रहा हूँ बिजली वाले के साथ के पीछे भाग रहा हूँ। Did I pray? क्या मैंने प्रार्थना की? I'm supposed to be praying when I came. मेरे को कायदे में यहाँ प्रार्थना करना है आने के बाद। Amen. Amen. Pray before you leave. अपना घर छोड़ने से पहले Pray प्रार्थना करें। pray after you came. जब आप यहाँ आ जाते हैं तो प्रार्थना करें, Sit down and pray. यहाँ बैठकर प्रार्थना करें। That's all part of the preparation. ये सब तैयारी का एक हिस्सा है। If you're coming to church on Sunday morning, जब आप कलीसिया में रविवार की सुबह आते हैं, you know church starts at 10 a.m., आप जानते हैं कि 10 बजे आराधना शुरू होती है। right? ठीक है, Worship starts at 10 a.m. 10 बजे आराधना शुरू हो जाती है। How many of you want to be here when the opening word is spoken? आप कितने लोग यहाँ होना चाहते हैं जब पहला शब्द बोला जाता है? Make a decision today. एक निर्णय लें आज सुबह के समय। I want to be in church on time. मैं कलीसिया में समय पे आना चाहता हूँ। Amen. What does that mean? उसका क्या मतलब है? How do you prepare? अपने आप को आप कैसे तैयार कर रहे हैं? Don't stay up till 3 a.m. 3 बजे तक जगे ना रहें। on Saturday night. शनिवार की रात में, On Saturday night, शनिवार की रात go to bed अपने बिस्तर at पे least by 10:30 or latest by 11 p.m. 10:30 या 11 बजे तक आप सो जाएं। Hello.
Can you just make that as an accountability thing for one another in your home? क्या आप अपने घर में एक दूसरे के प्रति इस चीज को एक नियम सा बना सकते हैं? Saturday night, शनिवार की रात phone, lights, everything off, 10:30. फोन और हमारी बिजली सब घर में सब बंद हो जाएगी Why? 10:30 बजे तक। क्यों? You don't want to come to church and sleep in the church. आप कलीसिया में आकर यहाँ सोना नहीं चाहेंगे, Amen? Because your body got enough sleep in the house. क्योंकि घर में आप अच्छे से सोकर आए हैं। That's part of preparation. ये तैयारी का एक हिस्सा है। Hello? Yes or no? That's how you prepare. इस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हैं। Read the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Read the word before you came. इससे पहले आप यहाँ आते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Amen? Come with a hungry heart. एक भूखे हृदय के दिल के साथ आए, Come with a willing heart. एक इच्छुक दिल के साथ यहाँ आए, Come expecting God to speak to you. इस अपेक्षा के साथ आए कि परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। Come to have a memorable experience with the creator of the universe. ऐसे समय के लिए आए जो परमेश्वर के साथ आपकी एक यादगार समय रहेगा। And then Solomon says, और फिर सोलेमान कहता है, come with an open heart. अपने खुले दिल के साथ आना है Amen. परमेश्वर के सामने। Come with an open heart to hear. खुले दिल के साथ आना है सुनने के लिए। And that brings us to the affirmation of worship. और फिर हमको ये उस जगह में लेकर जाती है जहाँ हम अपने शब्दों को उसकी घोषणा करते If you हैं। read verse 4 to 6, अगर हम 4 से 6 पदों को पढ़ें तो Solomon says, यहाँ सुलेमान कहता है, when in worship you make commitments, हम अपनी आराधना में मन्नतों को मानते हैं, keep your commitments. अपनी मन्नत को पूरा करो। When you make a vow to God, जब तुम परमेश्वर के सामने उन बातों को रखो, don't delay fulfilling it, उसको पूरा करने में तुम धीमा ना रहो, because He does not delight in fools. क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। Fulfill what you vow. उसको पूरा करो जो मन्नत तुमने परमेश्वर के सामने मांगी है। Better that you do not vow than that you vow and not fulfill ये it. अच्छा होगा कि तुम मन्नत ना मांगो इसके बजाय कि तुम उसे पूरा ना करो। It is a dangerous thing to make a vow to the Lord and not keep it. ये बहुत खतरनाक है कि हमने परमेश्वर के सामने कोई मन्नत मांगी और उसे पूरी नहीं करी है। My dear friends, unfulfilled vows are a sin. मेरे प्रिय मित्रों, हमारे द्वारा दिए गए कोई ऐसी मन्नत जो हम पूरी नहीं करते हैं वो पाप है। Sunday after the preacher preaches, we make decisions. हर रविवार जब प्रचारक Yes. प्रचार करता है हम निर्णयों को लेते हैं। I ask the question, how many of you want? Lift your hands, and then everybody lift their hands. मैं हमेशा प्रश्न को पूछता है आप में से कितने लोग, और फिर आप सब हाथ उठा लेते हैं। How many of us apply and keep those commitments? हम में से कितने लोग उसको सच में अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने उस समर्पण को रखते हैं। You said you want to be in church on time. आपने बोला है कि आप कलीसिया में समय पे आएंगे, That's a commitment. ये एक समर्पण है। Can you keep it क्या आप उसको रख सकते हैं before the Lord? परमेश्वर के सामने? Amen. Finally, आखिरी में that brings us to the attitude of worship. हमको हमारा स्वभाव कैसा है आराधना करने का उसकी तरफ लेकर If you आता look at है। verse 7, अगर हम 7वें पद को देखें, Solomon says, fear God. यहाँ पर सुलेमान कहता है परमेश्वर का भय मान। Come with a full reverence and recognition that we are actually worshiping God. पूरे आदर के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए, ये जानते हुए कि हम परमेश्वर को जान रहे हैं। Friends, the world does not fear God, मित्रों, ये दुनिया परमेश्वर का भय नहीं मानती है, but God's people must fear Him. लेकिन परमेश्वर को लोगों को उसका भय मानना है। Oswald Chambers said like this: ऑसवर्ल्ड चेम्बर ने ऐसा बोला है, the remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. एक सबसे अद्भुत चीज ये है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम किसी और चीज का भय नहीं मानते हैं फिर। Whereas if you do not fear God, you fear nothing else. और अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो हम और सब चीजों का भय मानते हैं फिर। In fact, when you look at all the verses from verse 1 to 6, जब हम पहले पद से 6ठे पद तक देखते हैं तो guarding your steps, अपने कदमों को सावधानी से रखना, not making a superficial sacrifice, अपनी जो है सिर्फ बनावटी सी बलिदान नहीं चढ़ाना, careless speech. कुछ भी बकवास में नहीं बोलना, Everything is based on this factor of fearing God. ये सारी चीजें जो है परमेश्वर के भय मानने के आधार पे आती हैं।
Another man of God, Stephen Charnock. परमेश्वर के दूसरे जन ने ऐसा कहा है, We believe that we should be satisfied जब हम ये विश्वास करते हैं कि हमको संतुष्टि मिलनी है, rather than God is glorified in our worship, इसके बजाय कि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए है, then we are putting ourselves as though God has been made for us rather than we are made for God. तब हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बनाया गया है, इसके बजाय हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। Did we make God? क्या हमने परमेश्वर को बनाया? This God of the Bible, लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर we है, did not make. हमने उसको नहीं बनाया, He made us. उसने हमें बनाया है। So we are to give Him the praise. इसलिए हमको उसको महिमा देनी है। God created us to worship. परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया है कि हम उसकी आराधना So करें। as we come to the close of our study today, इसलिए आज हम अपने अध्ययन के समाप्ति में आते हैं। it's time to make some commitment. ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ निर्णयों को लें। I'm putting before you 3 challenges. मैं 3 चुनौतियों को आपके सामने रख रहा हूँ। Number 1, सबसे पहली बात, never to make church a formality. कलीसिया में आना कोई नियम या कानून नहीं है। Never to make church a formality. इसको एक नियम ना बनाए अपने जीवन का। Number 2, दूसरी बात, commit to be consistent in coming to church. कलीसिया में आने को एक निरंतर होने वाली एक चीज बनाए। I'm not going to allow circumstances and situations to change and alter the priority of God's house. मैं अपने जीवन की परिस्थितियां जो जैसी भी हैं उन चीजों को अनुमति नहीं दूंगा कि वो मेरे जीवन में प्राथमिकता ले लें। And finally, और आखिरी बात, in my relationship with God, मैं अपने संबंध में परमेश्वर के साथ, He is my priority. वो मेरी प्राथमिकता है। God is my priority. परमेश्वर मेरी प्राथमिकता है। In other words, I'm going to fear the Lord. और दूसरे शब्दों में कि मैं परमेश्वर का भय मानूंगा। Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। I pray that God has spoken to you today. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे बातें की I हैं, know God has blessed you. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने हमें आशीष दी I है। know God is going to do something new. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नया भी करेगा। There is a suddenly awaiting for you. एक तुरंत होने वाला कुछ कार्य है जो आपके लिए रखा हुआ है।